अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत में जो लीडरशिप आज चमक रही है उसकी रोशनी से पूरा भारत चमक रहा है और भारत पूरी दुनिया में एक अजीम देश की हैसियत से उभर के सामने आया है। होना तो ये चाहिए था कि ये सदियों से, मिलेनियल से अजीम देश था, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में इसकी अज़मत को दाग लग गए और इस पे भूखे कुत्ते और गिद्ध मंडलाते रहे, इसको नोचते रहे। इन्वेडर्स, ख़ास तौर पे अब्रामिक जो इन्वेडर्स आए, जो क्रिश्चियन और मुसलमान, उन्होंने इसको नोच नोच के इसको खाया। लेकिन इसके बावजूद ये इसकी अज़मत कम नहीं हो सकती थी और इसको जब इन्वेडर्स से आज़ादी मिली, हालांकि इसके राइट और लेफ़्ट, ईस्ट और वेस्ट विंग काट दिए गए थे आज़ादी से पहले और वो मुसलमानों के हवाले कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस पे इन्हीं इन्वेडर्स के एजेंटों का कब्ज़ा रहा और 65 साल तक इसके पोटेंशियल को दबा के रखा गया। लेकिन फिर आखिरकार एक लीडर आया और उसने इस अजीम देश की अज़मत को दुनिया के सामने निखारना शुरू किया और ऐसे कदम उठाए कि जिससे दुनिया को पता चला कि ये भारत कितना अजीम है, इसकी अज़मत कितनी बुलंद है। देखिए ज़रा। 5 years ago, Narendra Modi was just another name. But after 5 years, Modi is no more a mere name. It is a mantra in itself. 5 years ago, the Prime Minister had promised to all of us, to all those who supported him and his cause. He said 5 years from now, when you go again to meet people and seek votes, I would not have done a single thing which would make you put your heads down in shame. He has not only lived up to his commitment, but the Prime Minister has also made us go to people with our chest filled with pride that we are supporters of a great patriot like the Prime Minister. The last 5-6 days, my dear friends, when I'm going and campaigning, I felt this election, we don't even need to print a pamphlet to go to people. Because people already know what the Prime Minister has done. All we need to do is, when I'm going and meeting people on the streets, even the people who I don't know, all I'm saying is Modi. And the moment I say Modi, people either wish me good luck, people say victory, people smile, because Modi today means the aspirations of 100 crore people. It means the voice of 60 crore young people. It means a rising India. It means a corrupt-free India. It means an India that talks like a superpower. It means an India which is a rising golden giant. When I keep thinking about how in the last 60 years, the history of the country is a history of lost opportunities for India, I very honestly doubt the patriotism and the intent of these people. These guys weren't patriots. No, they weren't. Because if you are a patriot, you will not deliberately keep the people of your country poor. You will not deliberately deprive them of economic opportunities. These guys did it the last 60 years. And all of these people now have come together to fight Narendra Modi. Who is the opposition to Narendra Modi today? The opposition to Narendra Modi, my dear friends, is a consortium of private political parties and political families who have run their states and political territories like private jagirs. It's a coalition of dynasts, a coalition of crooked, corrupt political private entities
who know their death, who know their time has come. If Modi gets elected again, the ways of the past 60 years will not continue again. All those dreams which perhaps Tejasvi Yadav was growing up with, thinking by one day even I will become like Lalu Prasad. He now knows that India has changed and that he cannot have another fodder scam because Modi will not allow it. Is why the entire dynasty from Kashmir to Kanyakumari have come together. From Omar Abdullah in Kashmir to MK Stalin in Kanyakumari, everybody want to stop Narendra Modi because they know their private enterprise will stop the Narendra Modi comes again. What is their agenda? Former Prime Minister Deve Gowda, who hails from my state, in a recent political rally, he said the only agenda of our coalition is to stop Modi. They're openly saying it. How can someone be more shameful? Modi is saying my agenda is a new India. My agenda is a $5 trillion economy. My idea is in 2020 a superpower. This is one agenda on the side. On the other hand, you have all of these jokers coming together and doing circus every single day and saying our agenda is to stop him. This may sound outrageous. The left liberals on Twitter may not like me saying this, but this election is a test of the common Indian's patriotism. And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. अजीज दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री में कभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं था जो इस सरकार, मोदी सरकार ने किया। भारत को डिफेंस की तरफ जितना स्ट्रॉन्ग भारत का डिफेंस आज है, कभी नहीं था। आज दुनिया भारत के डिफेंस को देख के हैरान होती है। भारत ने खुद अपने देश में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अपनी नेवी के हवाले किया। वो भारत जिसमें एक एक बंदूक की गोली, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाहर से आती थी, वो आज एयरक्राफ्ट, टैंक, पता नहीं क्या क्या भारत में बना रही है। वो भारत जो सिर्फ इंपोर्ट करती थी एक एक चीज़ डिफेंस की, आज उसका एक्सपोर्ट बड़े बड़े मुल्कों के इंपोर्ट से भी ज़्यादा है डिफेंस प्रोडक्ट का। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉप पे जा रहा है, भारत का फार्मास्यूटिकल टॉप पे जा रहा है, भारत की एजुकेशन हर लिहाज से भारत को आगे लेके जा रहे हैं। और आम भारतीय इस सफ़र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ चल रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये एंड पे मैं आपके सामने श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो भारत की पब्लिक से उनके इंटरेक्शन की उस वीडियो में आप देखेंगे। मैं जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कहीं भी कोई वीडियो देखता हूँ तो मैं बड़े गौर से उनके एक एक बात को सुनता हूँ। उनकी बातों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनकी जो वीडियोस होती हैं इसमें इतना कुछ होता है कि हम गौर से जब इनकी बातें सुने तो हमें पता लगता है कि एक विजनरी लीडर कैसा होता है। और ये आज के दौर के सबसे महान लीडर, नेता अगर कोई हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। सिस्को सिस्टम्स बेंगलुरु हमारे साथ जुड़ रहा है और वो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो मैं इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं समीर गर्दे, सिस्को इंडिया का प्रेसिडेंट हूं। सिस्को में हम विभिन्न तरीकों से वॉलंटियरिंग को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे एम्प्लॉइज, वॉलंटियर्स हमेशा अपने प्रयत्नों से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी एक पॉलिसी है, टाइम टू गिव, टू एनकरेज आवर एम्प्लॉइज टू गिव बैक टू सोसाइटी
We have 5 days of paid time off to volunteer for a cause or an organization of their choice. Every volunteer hour is matched by rupees 700 per hour to the NGO by the company. और पिछले साल सिस्को इंडिया के एम्प्लॉइज ने 35,000 घंटों का वॉलंटियरिंग किया। अब मैं हमारे ऐसे ही एक एम्प्लॉय चैंपियन नैन्सी जैन से अपने अनुभव आप सबसे शेयर करने को कहूंगा। नैन्सी। Thank you, Samir. Good evening, sir. Good evening. As a volunteer, I'm extremely passionate about education because I believe education is an important aspect of nation building. I started my volunteering journey with an organization called UNI that works with children from low-income communities and provides after-school learning. इस प्रोग्राम में मैंने एक छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ काम किया। मैं उसको इंग्लिश पढ़ाती थी। शुरुआत में वो बच्चा 5 मिनट भी क्लास में बैठ के मेरी बात सुनता नहीं था। जाहिर है 5 साल का बच्चा है, उसको मौज मस्ती की पड़ी रहती थी। लेकिन मेरे 1 साल की टीचिंग में एंड में उस इतना इंप्रूवमेंट था कि वो 40 से 45 मिनट तक बैठ के मुझसे पढ़ लेता था। उस मेरे एफर्ट्स का ऐसा इम्पैक्ट देख के मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, उससे मुझे ये एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं गिविंग बैक में अपने आप को जोड़ के रखूं। इस साल मैं एक और एनजीओ के साथ काम कर रही हूं, उसका नाम है ई विद्यालोका। उसमें मैं झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के केजीबी विद्यालय की 35 लड़कियों को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैथ्स पढ़ाती हूँ। आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सिस्को where we have such a supportive ecosystem that helps me sustain and drive my passion for giving back. माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं ये सब करती हूँ क्योंकि इससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और सिस्को के एम्प्लॉय से एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाहर कुछ लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज होने के नाते अगर हम अपने टैक्सेस भर रहे हैं तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बाकी का काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ कि मेरा उनसे क्या जवाब होना चाहिए। थैंक यू। नैन्सी, आपको बधाई, आपने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित किया है। आपने एक और चीज की तरफ ध्यान जरूर देना, शायद वो आपको काम आएगा। और भी मैं नौजवानों को कहता हूं कि आप भी एक नया एंगल में दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस शरारती बच्चे को आपने बैठना सिखाया, लंबे समय तक एक काम के लिए बैठना सिखाया, आपकी बात सुनने के लिए उसको कंसंट्रेट करना सिखाया, और आपको एक बहुत बड़ा संतोष है कि आपने उसको बहुत कुछ सिखाया। अब पल भर के लिए सोच लेना कि उसने आपको क्या सिखाया। दुनिया को लगता होगा कि मोदी आज इन सबको सिखा रहा है। हकीकत यह है कि मोदी आप सबसे सीख रहा है। वैसा ही वो बच्चा आपको सिखा रहा था, और उसके कारण जिस बच्चों को शुरू में इस स्थिति पे लाने में आपको 3 वीक गए होंगे, अगर वैसा ही बच्चा आप मिल जाएगा तो हो सकता है आप 2 वीक में कर देंगे। तो 3 वीक से 2 वीक की एफिशिएंसी जो लाया है ना, वो पहले वाला बच्चा आप में लाया। तो ये 2 वे हैं जी, ये 2 वे हैं। एक उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। आपने एक बहुत बड़ा टची सवाल पूछा है। ये बात सही है कि जो लोग टैक्स देते हैं और ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वे कानून को मानने वाले नागरिक हैं, वो समाज का दायित्व समझने वाले नागरिक हैं, और कुछ छोड़ो या झंझट में नहीं पड़ना है, भी जो है दे दो। रेल टिकट के अंदर जो टिकट लेकर के जाता है, वो उसको ये चिंता नहीं होती कि टीसी आएगा तो क्या करेगा। उसको मालूम है कि भाई मुझे बवाल नहीं चाहिए, मैं अपना टिकट लेकर के बैठूंगा। तो ये कानून को मानने वाले वगैरह हैं नागरिक, और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर सकता हूं, इस भाव के भी हैं। लेकिन जो हम टैक्स देते हैं वो एक व्यवस्था का हिस्सा है,
बनी बनाई व्यवस्था के, लेकिन समाज सेवा तो टैक्स प्लस कुछ करे तब होती है जी। और इसलिए टैक्स दे दिया, मैंने अच्छा काम कर लिया, आई अप्रिशिएट जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, और इन दिनों ईमानदारी से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ भी रही है। और कुछ लोगों को जो लगता है कि पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब इसलिए दे रहे हैं कि मोदी डंडा चलाता है। जी नहीं, टैक्स देने वालों की संख्या मोदी के कारण नहीं बढ़ रही है। टैक्स देने वालों को विश्वास हुआ है कि उसकी पाई पाई का सही उपयोग हो रहा है, इसलिए वो आगे आ रहा है। और इस देश के टैक्स पेयर को जिस दिन विश्वास हो जाता है कि मेरी पाई पाई का सही उपयोग होता है, इस देश का कोई नागरिक टैक्स चोरी नहीं करेगा। मेरे देश के नागरिकों के प्रति विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि वे कभी गलत करना नहीं चाहते हैं। मजबूरन कर देते होंगे तो हमें ऐसा अवसर देना पड़ेगा ताकि वो मजबूरन उस रास्ते पर न जाए, और ये सरकार का दायित्व है। लेकिन देखिए, मैं मानता हूं कि टैक्स देना ये प्रकृति है, टैक्स न देना विकृति है। लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी समाज के लिए कुछ और देना, वो संस्कृति है। और इसलिए, और आपको मंदिर में मानो किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां पर जाने के लिए मानो टिकट है, लेकिन अंदर जाकर के खुद डोनेशन नहीं करते ना, तब तक आपको संतोष नहीं होता है। आपको लगता है कि भाई वो तो नियम था, मैंने दे दिया, लेकिन अंदर जाकर के देता हूं तो होता है। हम कभी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ जो भी खर्चा करना है, लेकिन बाद में मन करता है जो पुजारी है उसको कुछ दे के चले, भाई उसको हाथ में कुछ दे दें, ताकि मेरे भीतर एक और संतोष प्रकट होता है। हम बहुत बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, बिल तो पे कर दिया है, जो देना था दे दिया, लेकिन फिर भी मन करता था वो बेरे को कुछ दे करके चले यार, गाड़ी में बैठते समय टैक्सी वालों को कुछ दे करके चले। ये जो भाव है ना, वो भाव ही वो टैक्स से +1 वाली व्यवस्था है। और इसलिए मैं समझता हूं कि टैक्स देना अच्छी बात है। ईमानदार टैक्स पेयर देश का लिए शान है, आन है, बान है, उनका गौरव होना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर प्रेरणा मिलती है, इसके अतिरिक्त कुछ जब ज्यादा करते हैं, तब आप सब लोग इस क्षेत्र में हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर एक आईटी प्रोफेशन में बैठा हुआ व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो भारत का लाभ करता ही करता है, लेकिन उसको संतोष तब होता है कहीं झाड़ू जगा करके 1 घंटा काम करता है तो उसको भी संतोष होता है, देश को भी संतोष होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमने इस दायरे में देखना चाहिए। और नैन्सी, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा और मैं आपका बहुत आभारी हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी बात सही ढंग से सही जगह पर पहुंची होगी।